Good evening, ladies and unexpected gentlemen today because we were expecting women program. So the audience max we were expecting were women, but it is great to see you guys also interested, taking some interest in this particular program. AMA has done series of program specific to women અને આજનો જે પ્રોગ્રામ છે એ લાસ્ટ સિરીઝ છે આ પ્રોગ્રામની અને કોઇન્સિડન્ટલી ધીસ પ્રોગ્રામ વોઝ આર ફેવરેટ જે વી વર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ અને પ્રિયંકા સો પ્રિયંકા આચાર્ય ટુડે સ્પીકર her name Priya means favorite and Anka means episode, so coincidentally this matches up a lot. જ્યારે આપણે દિલ મિલ that is daughter-in-laws and mother-in-laws, so when we talk about this particular series we expect some good and sour relations altogether. અને એક નાની વાત, I am very young to say this but my mother teaches this to me કે જ્યારે આપણે છે ને બીજા ઘરમાં જતા હોઈએ ત્યારે આપણે મગજમાં એવું રાખીને જઈએ કે હું મારા મનથી, મારા પ્રેમથી કે મારા એફર્ટ્સથી બધા ઇનલોઝનું મન જીતી લઈશ, એ આપણી એક્સપેક્ટેશન હોય અને એક્સપેક્ટેશનથી આપણે ઇનલોઝના ઘરે જતા હોઈએ છીએ. સો જ્યારે આપણે કંઈ કામ કરતા હોઈએ ત્યારે કદાચ ક્યાંક ભૂલ થઈ જાય અને થાય, સ્વાભાવિક છે. સો જે ભૂલ જ્યાં થાય છે ને, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ લર્નિંગ પોઈન્ટ ફોર બોથ દિલ્સ એન્ડ મિલ્સ, બંને માટે કે કંઈ કરે છે તો ભૂલ થઈ રહી છે અને હું કંઈ કરું છું તો ભૂલ થવાની જ છે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેર આઈ સમ અપ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ એવરીબડી. આજના સ્પીકરની વાત કરીએ તો શી ઇઝ એન એજ્યુકેટર ફ્રોમ મુંબઈ. Two reasons I think specifically why we have her today here is, one, she is a daughter-in-law and a wife from 12 and a half years now, and she is half the way, almost half a way to become a mother-in-law too, almost. And second is her expertise to it. So I think she is the right person, and without any further ado, I'll call her up on the stage, and I'll also request Gopi Trivedi. She is our governing council member and IP practitioner on the dais to felicitate her. Please, ma'am, please come on the stage. Ma'am. So thank you, ma'am, and I hand it over to her. She is the one to talk today. Yes. Is it okay if I come here and talk to you? કારણ કે નહીં તો મને એવું પ્રોફેસર જેવું લાગશે અને આઈ થિંક ધીસ ઇઝ એન ઇવનિંગ ટોક, તો થોડું સરસ લાગશે. સો હિન્દી, ગુજરાતી ઇઝ ઓકે? અચ્છા, તો હિન્દી વધારે કે ગુજરાતી વધારે, જે ફાવે? બંને ओके, चलो 50-50, ठीक है. सो हर स्पीकर का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है. हर स्पीकर को बहुत अच्छा लगता है जब उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है. एक इंट्रोडक्शन है जो मैं कभी लिखकर नहीं देती, बताती नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद देना होता है. क्योंकि हर सेशन की शुरुआत मुझे उस इंट्रोडक्शन से करनी होती है. मैं एजुकेटर हूँ, मुंबई से आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक बहू हूँ 12.5 साल से, एक बीवी हूँ 12.5 साल से, और यहाँ पर आप जो एक नन्हा सा फरिश्ता देख रहे हैं वो खुद 10.5 साल का है. तो जैसे आना ने कहा, आई एम ऑन द वे टू बिकम अ मदर इन लॉ माई सेल्फ आफ्टर मैनी ईयर्स. लेकिन ये जो परिचय है वो ये है कि मैं बहुत गौरव से कहती हूँ कि मैं 2 परिवारों की लक्ष्मी हूँ. और थैंक यू.
और ये जो अपना इंट्रोडक्शन है ये देते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि सारी ये जो परिवार की और रिलेशनशिप्स की परिभाषा है वो चेंज हो जाती है जब मैं कहती हूँ कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ। ये आइडेंटिटी हमको यूनिवर्स ने गिफ्ट की है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास ही है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं और जितने उनके सपोर्ट सिस्टम्स बैठे हैं, सबको पता है कि घर की लक्ष्मी ये हम सबकी आइडेंटिटी है। आज मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये टॉपिक आता है, दिल मिल नाम बहुत प्यारा सा रखा गया है ये में से कि इसको दिल मिल कहते हैं, ओके। तो टॉपिक तो बहुत प्यार भरा बनाया हुआ है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है, ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કહેવામાં આવે કે જ્યારે એક માગું આવે ને, ગુજરાતીમાં કહું તો માગું આવે કે એક रिश्ता आता है, तो कहा जाता है कि ये घर तेरे लिए बहुत सही है बेटा। क्योंकि क्या है ना कि वो मम्मी डैडी जो है ना वो कहीं अलग रहते हैं, तो सास वाली किचकिच तेरे को नहीं सहनी पड़ेगी। सास जो होने वाली होती है उनको कहा जाता है कि ये वाला रिश्ता बहुत करेक्ट है, क्योंकि क्या है कि आप डॉक्टर हैं तो ये जो लड़की है वो भी डॉक्टर है, तो क्या है आपकी बन पाएगी। और जब मेरी शादी होने वाली थी या मेरे लिए जब लड़के ढूंढे जाते थे तो मुझसे कहा जाता था कि बेटा આપણામાં છે ને જન્માક્ષર મેળવવાનું હોય, कुंडलियां मिलाई जाती है, तू एक काम करना अपनी कुंडली सास से मिलवा लेना वो ज्यादा जरूरी है। ये जो हम आसपास ये सुनते हैं ना, कई बार मुझे ये लगता है कि हम ऐसे क्यों सोचते हैं, ओके। और आज जो ये हम सेशन कर रहे हैं, ये टॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप इसमें जो शाम को आए हो अपना समय निकाल कर, तो आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप आए हो, यहाँ पर आकर बैठे हो, तो आपने ये जो कदम उठाया है वो शायद इसलिए उठाया है कि आप भी चाहते हो कि इस माइंडसेट में कुछ चेंज चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस और नो? जी, आप बात करते रहेंगे तो शाम अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज ऐसा होगा कि मैं कुछ लेक्चर सुना के चली गई। ये लेक्चर नहीं है, ओके। तो अगर आप ये माइंडसेट बदलना चाहते हो तो ना कोई मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेस की बात करने वाली हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी आपको फिलॉसफी बताने वाली हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को पकड़कर इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज देंगे आज, बस इतना ही करना है, ठीक है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लेके आने बोल रही हूँ कि यहाँ से बाहर जाओगे तो बस आज तो ये कर देंगे, आज तो कुछ तूफान ही कर देंगे। ये तूफान तो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारे सबके घरों में। इस तूफान को सुनामी नहीं बनने देंगे और इस तूफान को बहुत ज़्यादा थमने भी नहीं देंगे। हम इसका एक कुछ अलग बदलाव ले आएंगे। तो आपको ये बदलाव लाना है। और यहाँ पर जो बहुत सारे पुरुष आए हैं, आप ये मत समझिए कि अरे मैं कहाँ फंस गया, ये लेक्चर तो मेरे लिए है ही नहीं, गलत टॉपिक में पहुँच गया, ए में था तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके। ये मेरा वादा है आपसे। ऑल राइट, सो आर यू रेडी? ठीक है। तो आज शर्त ये है कि शाम को आप बैठे नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप करोगे या नहीं करोगे? ना सास की ना बहू की बुराई करवाऊंगी, इतना प्रॉमिस है करोगे या नहीं करोगे? ठीक है। तो आप जैसे आकर बैठे थे, आपको एक ब्लैंक पेपर मिला होगा अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। हमने समय बचाने के लिए वो रखा है वहाँ पर, ठीक है। तो वो खाली पेपर आपको नोट्स लिखने के लिए नहीं रखा है, कुछ करने के लिए रखा है। और वहाँ पर पेन भी होगी, जिसके पास ना हो प्लीज़ ले लीजिए पेन। हाँ, वो आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे। क्या आप बचपन में छोटे थे? नहीं, मतलब मैं अभी भी हूँ
आप काफ़ी लोगों में से बहुत छोटी हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात भी कर रही हूँ, शायद अब मौका मिला है तो कर रही हूँ. ओके, सो हम बचपन में जो छोटे थे तो हमने, कोई भी जनरेशन के हम हो, किसी भी उम्र के यहाँ पर लोग बैठे हों, एक काम हमने ज़रूर किया होगा कि कभी कभार आपने पेपर पर अपना हाथ रखा होगा और अपने ही हाथ की ड्राइंग बनाई होगी. कि ये सबने, किन किन ने की है, ज़रा हाथ ऊपर कीजिए. कुछ लोग हाँ हाँ कर रहे हैं पर दिख नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ओके, वेरी नाइस. तो आपने ये किया है, ठीक है. तो आपको आज क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर दे दीजिए. इस पेपर को ऐसे रखना है, ऐसे मत रखिएगा. ओके, ऐसे रखिए हॉरिजॉन्टल, ताकि आपको स्पेस मिले. ये जो आपका पेपर है हाथ में, ठीक है, एक अपना लेफ्ट हैंड इस पे रखिए आधे पेपर में, आधे पेपर में अपना राइट हैंड रखिए. समझे? तो एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड, और अपने ही हाथ से अपना हाथ बना लीजिए. आप समझ गए? कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं. हाँ, बारी बारी से ऑफ कोर्स. तो पहले एक हाथ रखिए, ड्रॉ कीजिए, फिर दूसरा हाथ रखिए, उसको ड्रॉ कीजिए. हाँ, अभी अभी अभी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. मैं क्या करूँगी वो मैं बताऊंगी आपको. अभी पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं. हाँ, पेपर और पेन वहाँ आ रहा है आपके पास. जल्दी जल्दी से बनाइए. हाँ, सॉरी, रिपीट करती हूँ जो अभी आए हैं. हमने बचपन में हमेशा एक पेपर पर अपना हाथ रखकर अपने हाथ की डिज़ाइन पक्का ड्रॉ की है. पेपर जो आपके हाथ में है उसको हॉरिजॉन्टली रखिए ताकि आपके दोनों हाथ फिट हो पाएँ उस पर. ओके, एक साइड, मतलब साइड ऑफ द पेपर नहीं, मैं ज़रा दिखा देती हूँ जिन्होंने कर लिया है. दिस इज़ हाउ यू विल मेक इट. कैन यू सी दिस? ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके सबने सेम सेम बनाया है जी, वैसे ही. हाँ, लिख सकते हैं, नाम तो बिल्कुल लिख सकते हैं. उस हाथ पे मत लिखिए बस. पीछे ऊपर नीचे कहीं लिखिए, लेकिन हाथ पे मत लिखिए अभी के लिए. हाथ पे क्या लिखना है बताती हूँ. हो गया है सबका ये? हाँ ना, कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा जी. वेरी नाइस. ओके, तो ये बचपन में तो हम चले गए थोड़ा सा फ्लैशबैक में. अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं. मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं इस सेशन का कि ये कोई व्यक्तिगत सेशन नहीं है जहाँ पर मैं अपने घर की या आपके घर की या आपकी बहू की या आपकी सास की या मेरी सास की वगैरह बात कर रही हूँ. ओके, ये एक जनरल माइंडसेट ओरिएंटेड सेशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये माइंडसेट चेंज हो. कि एक लड़की की जब शादी होने वाली होती है तो उसको पहले दिन से डराया जाता है, तुम्हारे घर में सास होगी. इतना बुरा कोई रिश्ता ये है नहीं. मैं तो खुद 12.5 साल से अच्छा खासा रह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेकिन ये जो माइंडसेट है इसको बदलाव लाने के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं. तो इस सेशन में कोई भी मोड जो आए उसमें प्लीज़ एक ओपननेस रखिए, एक ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, ये कोई सीरियल नहीं है जो 5 साल चलने वाली है. ओके, जिसमें बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर एकदम से 3 बार हम फोकस करने वाले हैं कैमरा से. ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. हम व्यक्तिगत रिश्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता घर का सेंटर पॉइंट है, घर का दिल है, और सब कुछ इस पर निर्भर है. बाकी सारे रिश्ते खराब या अच्छे इसी रिश्ते पर चलते हैं, ये तो आप मानते होंगे. तो जितना आज हम दिल मिल के, घुल मिल के, खुल कर बात करेंगे उतना बेटर होगा. ना यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम एक रिश्ते की बात कर रहे हैं, एक सोच की बात कर रहे हैं. इज दैट ओके विथ एवरीबडी? सरस छे, मजा आवे छे. ओके, तो अब आपको लिखना है ये जो आपने उंगलियां बनाई है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 उंगलियां हैं, मतलब 4 उंगलियां, एक अंगूठा मिलाकर 10 है टोटल जी. तो अब ये जो उंगलियों का हिस्सा है, लैंग्वेज आप चूज़ कीजिए, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जापानीज़,
जो चाहिए चलेगा. ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो एक हाथ है जिसमें 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, हम हर रिश्ते से ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं. ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए. ओके, जो है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो होना चाहिए की बात कर रही हूँ. ओके, 5 ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो एक सास में होनी चाहिए. ओके, मैंने फिर से मैं कह रही हूँ, व्यक्तिगत नहीं जा रहे हम, तो शर्माइए मत, सोचिए मत, अपने आप को उस शेल में मत रखिए. आप आ गए हैं तो आपने वो स्टेप ले लिया है. ओके, और यहाँ जो पुरुष बैठे हैं वो भी, क्योंकि मैंने कहा ये रिश्ता दिल है घर का, तो आपके भी रिश्ते अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से. तो 5 चीज़ें जो आपको ऐसे लगता है कि एक कोई भी जो सास हो, चाहे वो लड़की की माँ हो या लड़के की माँ हो, वो भी कह दूँ, दोनों सास ही होती है. ठीक है, बदनाम एक होती है वो अलग बात है, होती दोनों सास ही है. ठीक है, तो एक मदर इन लॉ के 5 पॉजिटिव क्वालिटीज आप एक हाथ में ऐसे उंगलियों के एरिया में लिखेंगे. क्लियर है? और एक बहू के जो पॉजिटिव क्वालिटीज होने चाहिए वो आप दूसरे साइड के 5 उंगलियों में लिखेंगे. क्लियर है? एकदम क्लियर? पक्का लिखेंगे? पक्का? कुछ तो लिखने लगे. हाँ, कोई भी लेफ्ट राइट वो आपकी मर्जी. ओके, एक मदर इन लॉ वाली क्वालिटीज, एक डॉटर इन लॉ वाली क्वालिटीज, आप 5 क्वालिटीज इनकी, 5 इनकी लिख लीजिए और जरा जल्दी से लिखिए. कुछ पूछना है अंकल? बोलिए. मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ जो पुरुष है आपके हिसाब से भी, चलिए ना, मैं थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन कभी कभी मैं स्पीच सुन के कहती हूँ ना इनको ये करना चाहिए. मैं थोड़ी ना क्रिकेटर हूँ, फिर भी खेलते खेलते देखते देखते कहती हूँ ना, अरे यार ये विराट कोहली ने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे आउट हो गया, समझ में नहीं आता है. तो कभी कभी हम अपेक्षाएं तो हमको सबसे होती है. तो आपके हिसाब से एक आइडियल सास की 5 क्वालिटीज, आपके हिसाब से एक आइडियल बहू की 5 क्वालिटीज, आप उसमें है या नहीं उस रोल में, वो कोई मायने नहीं रखता. कुछ लोग तो पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं. हो गया? ओके. चाहिए पेपर दे सकते हैं क्या? पीछे उनको चाहिए पेपर और पेन चाहिए. बस नहीं. हो गया है या अभी बाकी है? अच्छा, कुछ लोग लिखते दिखाई दे रहे हैं मुझे. यहाँ आधे लोग सोच रहे हैं कि उंगलियां कम पड़ रही हैं, आधे लोग सोच रहे हैं कि यार क्या लिखूं, भर नहीं रहा है. कोई बात नहीं, हम दिल मिल कर लेंगे, उसी के लिए तो आए हैं. ओके, आप में से कितने लोग लिख चुके हैं? 10. अरे बहुत कम है यार, जल्दी से लिखिए ज़रा. ओके, मैं अब टाइमर रखूँगी. अब मैं 1.5 मिनट का समय देती हूँ. इंस्टाग्राम भी रील में 1.5 मिनट का समय देता है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी. तो 1.5 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है, फिर सुपरवाइज़र आके स्नैच करके जाएंगे. ओके, 1.5 मिनट का समय आपके पास अब 1 मिनट का हो गया है.
ओके जब तक बाकी लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं पेपर और जो मेरे पास बचे हुए 30-40 सेकंड हैं, कई बार जब हम ऐसे किसी सेशन में आते हैं तो हमको लगता है हमको बैठ के सुनना है, जो पसंद आए वो ले जाएंगे, बाकी का छोड़ के चले जाएंगे। फिलहाल जो आप कर रहे हो वो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, क्या आप मानते हो? यस और नो? ये जो दिल मिल है, ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते का जो पर्सपेक्टिव है, इसका माइंडसेट है, और आज जो हम करने यहाँ बैठे हैं वो भी एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन एक्टिविटी है। और जब तक हम यहाँ पर छोटी सी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर ये लेक्चर सुन के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ना तो यहाँ पर आपको कोई मार्क्स दिए जाएंगे, ना आपकी जो चिट्ठी है वो आपके घर पे पोस्ट की जाएगी कि देखो इन्होंने ये लिखा था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपना समय निकाल कर आए और आप एक कीमती टॉपिक पर बात करने आए हैं। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे हमारा भी दिल मिल नहीं हो पाएगा। यस वेलकम। ओके सो कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ लोग पूरा भर नहीं पाए, सोच रहे क्या लिखूं। ओके तो अब ज़रा दिल मिल करते हैं। ओके आप बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास 5 और 5 पॉइंट्स होंगे, कुछ के पास 3 होंगे। ओके 2 जन अभी आए। ओके तो आपको करना क्या है, अब आप अपनी जगह से उठेंगे, नेसेसरीली उठेंगे। बाजू वाला है ना उससे बात कर लेंगे, ऐसे मत कीजिए। ओके अपनी जगह से उठिए, थोड़ा सा चलिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके तो ये जो आप उठेंगे वो सब जो गिर पड़ रहा है वो छोड़ दीजिए। आप उठेंगे अपनी जगह से, घूमेंगे ज़रा। मिनिमम आप 3 नए लोगों को मिलेंगे। कुछ लोग अपने ही घर के लोग साथ में आए हैं तो उनको मत मिलिए अभी, वो घर पे कीजिएगा वो एक्टिविटी, होमवर्क। ओके आपको मिलना है एटलीस्ट मिनिमम 3 लोगों से। ये हेजिटेशन का टोपला साइड में रखिए, आज हम दिल मिलाने आए। ओके 3 लोगों से मिलिए, उनके 5 और 5 पॉइंट सुनिए, अपने 5 और 5 बताइए। कुछ लोग जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं आपके लिए अच्छा आइडिया है और कुछ लोग जो अभी अभी आए हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे थे कि 5 क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि किसी भी दुनिया की, किसी भी, आपकी मेरी नहीं, किसी भी मदर इन लॉ में ये अच्छे 5 क्वालिटीज़ होने चाहिए। वो 5 क्वालिटीज़ इन्होंने अपने अपने पेपर पे लिखे हैं। और किसी भी दुनिया की डॉटर इन लॉ, इंक्लूडिंग मी, मेरी होने वाली भविष्य की डॉटर इन लॉ, एवरीबडी, दुनिया की हर डॉटर इन लॉ में ये वाले 5 क्वालिटीज़ होने चाहिए। ऐसे 5 और 5 क्वालिटीज़ अपने अपने पेपर पे लिखे हैं। कुछ लोग कॉपी करने वाले हैं, कुछ लोग लिख नहीं पाए क्योंकि अभी आए हैं। फिक्र मत कीजिए, अभी आप दिल मिलाइए। ओके 3 लोगों को मिलिए, नॉट नेसेसरीली मेल फीमेल, ये सब साइड पे रखिए। 3 लोगों को मिलिए, अपनी बताइए, उनकी सुनिए। ओके और जो भी आपको कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, अरे ये तो मैंने भी लिखा है, ये उसने भी लिखा है, उस पर ज़रा अपने शीट पे टिक मार्क लगा दीजिए दोनों लोग। ठीक है, समझ में आए? ओके ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए थोड़ा सा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस दिल मिलाइए। क्लियर है? तो अपनी जगह से प्लीज़ उठिएगा, बिकॉज वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। बाजू बाजू में नहीं, 3 लोगों को मिलना है, थोड़ा सा चलिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा लोगों को जानिए। और यहाँ ना सबका साथ सबका विकास बहुत ज़रूरी है। फिर 4 लोग उठेंगे नहीं तो सब नहीं उठेंगे। तो ज़रा उठिए, मिलिए लोगों को। चलिए चलिए अपनी जगह छोड़िए, कुर्सी की पेटी मत बांधिए, उसको खोलिए और ज़रा चलिए। ओके कैन वी हैव सम पीपल मूविंग अराउंड? चलो चलो ચાલતા રહેવાનું છે, ફરતા રહેવાનું છે। पार्टनर ढूंढ लीजिए आप, यहाँ पर बहुत सारे हैं। जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड अप एंड
ઓકે, એક પતે એટલે પાર્ટનર ચેન્જ. ઇમિડિયેટલી ચેન્જ યોર પાર્ટનર્સ. All right. Change your partner. Change your partner. Quickly change your partner. Change, change, change. You need a partner. मैम आ जाइए इधर. सर इधर आ जाइए. मेरे पास भी कोई यस आ जाइए, मैं आपको पार्टनर देती हूँ. आप इधर आइए. नो 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 नो, आई विल सर्च फॉर यू. कम 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 कम. डू वी हैव अ थर्ड पर्सन हु इज देयर? ओके, पार्टनर पार्टनर, चेंज योर पार्टनर. Have you filled up? He needs a partner. All right, change your partner quickly. Quick, quick, quick. चलिए, 5 points, 5 points, 5 और change your partner quick. घूमते रहिए, बात करते रहिए, बात करने से बात बनती है. All right, do you need a partner? There are lots of people. पक्का 3 हो गया? All right, very nice. Are you done with 3 people? अरे only 2. जल्दी जल्दी change your partner. Go to the last partner please. Third partner ढूंढिए जल्दी से. Who needs help in a partner? She needs a partner. Please pick her. अच्छा, okay. So come here, come here. There are so many here. Okay, she needs a partner. Please go on. All right, excuse me. નહીં મને નથી જોતું, તમારી પાસે જ રાખો, તમારી પાસે જ રાખો. All right, 3 partners done? Yes or no? Yes. जल्दी जल्दी, last 60 seconds for you. जल्दी से 3 पार्टनर खत्म कीजिए. Thirty seconds more. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Back to your places, please. તમે સૌ પોતપોતાના સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો અને સીટ બેલ્ટને બાંધી દેશો એટલે આપણે પ્લેન પાછું શરૂ કરી શકીએ. All right. Okay, everybody back. कुछ लोग पहले उठ नहीं रहे थे कि बात क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे. अब बोल रही हूँ बैठने को तो बैठ नहीं रहे. Awesome. Okay, done everybody. Thank you so much. I think आपको अपने लिए तालियां बजानी चाहिए because आप कुछ नया करके बैठे हो. Thank you. Okay. सो ये जो आप बात कर रहे थे अभी तक देखो चल ही रहा है. वेरी गुड. दिस इज द स्पिरिट. वेरी नाइस. आई सल्यूट यू ऑन दिस. थैंक यू. देखो ना यहाँ पे मेल्स भी सोच रहे थे यार मैं कहाँ आके फंस गया. अब देखो क्या हो रहा है. ऑसम. ऑल राइट. सो अभी जो हम बात कर रहे थे, जो भी हो रहा था, क्या हुआ एग्जैक्टली जब आप लोगों से मिले? मुझे आपसे जानना है. अच्छा लगा?
ओके, थॉट शेयर किए, मैं क्या सोचता हूँ क्या सोचते हैं, आप कुछ कह रहे थे. બીજાનો પર્સપેક્ટિવ શું છે રિલેટેડ ટુ ધીસ સબ્જેક્ટ અને એમનો પર્સપેક્ટિવ છે એ ખરેખર આપણે એડેપ્ટ કરવો જોઈએ કે નહીં ઓકે, કદાચ મારા કરતાં સારું છે મારી જે ડેફિનેશન છે બેસ્ટ સાસની કે બેસ્ટ બહુની એના કરતાં ઉપર એ વિચારે છે તો Alright. એનું કંઈ સારું લઈ શકું ऑसम. ओके, एनीथिंग एल्स? अलग जेंडर और अलग एज ग्रुप में से मुझे इतना अच्छा इंसाइट्स मिला जैसे सर ये जो आई थिंक मैं आपको माइक देती हूँ, ये जो आप इतना अच्छे से. तो सर सेकंड यहाँ जो बैठा ना मेरे सामने सो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एज अ मदर इन लॉ उनको लेट गो करना सीखना पड़ेगा. सच अ नाइस थिंग क्योंकि 10 साल बाद मैं मदर इन लॉ बन जाऊंगी. तो थैंक यू सर, वंडरफुल कमेंट्स यू गेव. ऑसम. और कुछ क्या हुआ क्या एग्जैक्टली ये जो 10 मिनट 5 मिनट जो भी चल रहा था जी? कुछ सेम पॉइंट्स कुछ नए पॉइंट्स भी मिले. कुछ सेम पॉइंट्स कुछ नए पॉइंट्स. ओके, जैसे ही ये दिल मिल या ये डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ कॉन्सेप्ट आता है, આપણે એવું કહીએ કે કાગડા તો બધે કાળા જ હોય. ओके, और हमने ना ये बहुत लेबल्स बना दिए हैं. कई बार ना शार्क टैंक हो, कोई शो हो, कुछ भी हो, जैसे मैं भी आज यहाँ पर स्पीकर हूँ, अगर मैं कहूँ कि यार मेरी सासू माँ तो मेरी माँ समान है, तो आप कहेंगे वो तो स्पीकर बना है ना इसके लिए झूठ बोल रही है. कई बार आप शार्क टैंक पर देखेंगे एक सास बहू बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये तो છે ને ટીવીમાં બધા બોલે, પછી ઘરમાં તો એવું જ હોય. somehow we have made these labels in mind कि अच्छा हो ही नहीं सकता ये रिलेशनशिप. कैसे हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप है ही इतना बदनाम. अभी आप जब ये लिख रहे थे, पॉइंट्स लिख रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे लिखूं क्या. અમુક લોકોને આંગળી ઓછી પડતી હતી કે હજી તો ઘણું બધું લખવાનું છે, આખી ચોપડી લખી શકો આના પર. पर ये जो एक्सपेक्टेशंस हम लिख रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या किसी के भी घर में, मैं अपना छोड़ दीजिए, क्या किसी के भी घर में आपने ऐसा देखा है कि इन एक्सपेक्टेशंस पर बात होती है? हाँ या ना? આપણે થોડું કંઈ સાસુને કહેવાય કે તમારે આમ જ વર્તવાનું, અને આપણે કંઈ વહુને એમ કંઈ કહેવાય નહીં. આજકાલની છોકરીઓને તો કંઈ બોલાય જ નહીં આપણાથી, એટલે આપણે કહેવાય જ નહીં. अगर आप अभी गौर करें, जो हमने अभी एक्सरसाइज की, ये एक बेसिक कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है. बेसिक कम्युनिकेशन है. 5 वर्ड्स आपने बोले, बस कुछ ज़्यादा नहीं हुआ. पर ये कॉन्वर्सेशन करना हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है. ऐसे कैसे बोल सकते हैं? चलिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये अजम्पशन में क्यों जीते हैं कि ये 5 तो वो नहीं करेगी, मारा 5 पॉइंट तो नहीं જ કરે, ઓલા માસી વાસી કોઈ સમજાવશે ને તો કરશે, હું કહીશ ને તો નહીં કરે. એક ગુજરાતીઓમાં કહેવત છે, પારકીમાં, વેરી નાઇસ, પારકીમાં કાન વિંધે. एक्चुअली आज एक बात बताऊं, दिल मिल पे आए हैं तो ये जो मदर इन लॉ होती है वो पारकी माँ ही होती है. इसीलिए हल्का सा चुभन होती है जब कान विंधती है. वो पारकी माँ है. और आज हम ये क्लियर पर्सपेक्टिव लेकर मन से बाहर जाएंगे कि एक सास माँ नहीं होती और नहीं हो सकती. शायद हम कह सकते हैं कि माँ जैसे हैं, मेरे हैं, अपने हैं, लेकिन लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं जो अपनी रिलेशनशिप अपनी माँ से शेयर करती हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी और व्यक्ति से दुनिया में कर सकूँ, अपने पापा से भी नहीं. और मेरी सासू माँ जो रिलेशनशिप अपनी बेटी के साथ शेयर करती है वो दुनिया में किसी के साथ भी नहीं कर सकती, मेरे ससुर जी के साथ भी नहीं. क्या आप मानते हैं? अगर हमने ये एक्सेप्टेंस पहले दिन से ला दी
कि ये मेरी सासू माँ तो मेरी मम्मी जैसी होनी चाहिए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही पूरी गलत हो गई है। मैंने बेस ही बहुत गलत स्ट्रेच कर दिया है। यानी मैंने गुजराती मीडियम स्कूल में एडमिशन लेके बोला ये मुझे इंग्लिश स्पीकिंग बना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और क्या होगा कि ये एक्सपेक्टेशन का बोझा उठा उठा कर हम बहुत सारे साल चलते जाएंगे फिर, और कहेंगे क्या, ये तो घर घर नहीं कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और फिर हमारे अच्छे अच्छे टीवी सीरियल्स आकर हमको और ज़्यादा मोटिवेट कर जाते हैं कि हाँ बराबर ऐसे ही होता है, और ये ऐसा ही होता है में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। और बहुत सारे जो पुरुष यहाँ बैठे हैं वो भी इसी में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। यार मारे छे ने आजकल जो मेरे यंग जो मित्र है ना, वो कहते हैं कि मारे तो छे ने भेगा ज नहीं रहવું एक घर में, एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती। और कुछ जो बहुत अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर, वो सोचते हैं कि अभी हमारी तो निकली गई, कदाच तमारी नहीं निकले जिंदगी આવી રીતે। हर कोई अल्टीमेटली एक सल्यूशन की जगह इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके जी रहा है, और हमने प्रॉब्लम ना होते हुए उसको प्रॉब्लम बना दिया है। नहीं ऐसा ही होता है जोजे। हाँ सासू माँ, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी से देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जीवनसाथी.com से मिले 12.5-13 साल पहले। ओके, वो प्रोफाइल एक्सचेंज होती थी ना, तो ऐसे बाद में पेरेंट्स बात करते हैं, इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, तो पेरेंट्स ने बात की, ठीक है। फिर सब कुछ बराबर हुआ, दिल मिल गए, तो हमारी शादी तय हो गई। हमारी एंगेजमेंट हुई, हम सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन लोग पूछते तो हैं क्यांथी थयु, केवी रीतना थयु। तो हमने इंटरेस्टिंगली कहा कि नहीं, इसमें कोई मीडिएटर नहीं था, इसमें जीवनसाथी.com था। जैसे ही हमने जीवनसाथी.com बोला, उनके वेबसाइट के व्यूज़ बढ़ गए उस दिन, क्योंकि लोग मेरे हस्बैंड की प्रोफाइल ढूंढ रहे थे और उनके साइड के लोग मेरी प्रोफाइल ढूंढ रहे थे कि लिखा क्या है, क्योंकि इसमें सब मिल जाएगा। आपको मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा फ़ोन आए नेक्स्ट डे मुझे जो फ़ोन आए वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाले तो थे, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा सा फीका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी जीवन साथी प्रोफाइल पर लिखा था, जिस बात का मुझे बहुत बहुत गौरव है आज, मेरी मदर इन लॉ एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जामनगर गुजरात से। She is the first woman PI who retired from the city of Jamnagar. And thank you. मेरे हस्बैंड ने उस वक्त, मेरे होने वाले हस्बैंड ने जीवन साथी में अपनी प्रोफाइल में लिखा था कि माई मदर इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर। आई एम सो सैड टू से कि मुझे जो फोन्स आए वो ऐसे आए, सासू माँ पुलिस में छे। हाँ चेती ने चल जो, तूने पढ़ा नहीं प्रोफाइल में। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा उस दिन, तूने पढ़ा नहीं प्रोफाइल में, सासू पुलिस में छे, ध्यान में रखजे। फिर कुछ लोग कहने लगे छे ससरा शू करे छे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि माई फादर इन लॉ हैज़ हैंडल्ड माई चाइल्ड सिंगल हैंडेडली। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ पढ़ रही थी जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1-2 महीने का। माई फादर इन लॉ सिंगल हैंडेडली उन्होंने इसकी पॉटी तक साफ़ की, आज मैं ये लाइव कैमरा पे कह सकती हूँ। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कल्चर सेट बाय माई मदर इन लॉ एंड हर मदर इन लॉ इन आवर हाउसेस। आज मेरे हस्बैंड खाना बना सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, हम दोनों एक साथ घर चलाते हैं, संभालते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं, अपने करियर्स भी संभालते हैं। इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट इज सेट इन द होल फैमिली। और मैं ये ब्लेस्ड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं एकदम ओपनली कह सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि माई मदर इन लॉ इज़ एज गुड एज माई मदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ना मैंने ये एक्सपेक्टेशन रखी है, ना हमने दोनों ने एक दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन बनाई है कभी इतने सालों में।
तभी मैं शायद यहाँ खड़ी हूँ और मुझे इस लायक बनाया गया है कि मुझे यहाँ बुलाया गया इस सेशन के लिए। अब इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो आपने पांच एक्सपेक्टेशन सेट किए हैं, इसका कॉन्वर्सेशन कैसे होगा? क्योंकि आज हमने लिख तो दिया कि ऐसा होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो हर मैच में विराट कोहली की डबल सेंचुरी होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। ओके, होना तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 500 लोग होने चाहिए, खड़े होने चाहिए लोग पीछे गर्दी करके कि अरे यार इतना बड़ा टॉपिक है, नहीं है। ओके, पर होना चाहिए छोड़ दीजिए साइड पर, क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं आज। ये आपको सुनना है कि बहुत हो गया? पक्का? चौकस? नहीं, पूछ लेती हूँ, पहले क्लियर करना अच्छा होता है। मैंने कहा ना एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आपने एक आसान सा डेमो देखा एक्सपेक्टेशन सेटिंग में, आपको पूछ रहे थे वो सुनना है कि नहीं? कुछ लोगों ने शायद अब बैठ गए हैं तो बोला होगा हाँ अभी इतना सुन लिया है तो आगे भी सुना ही दो पर कुछ लोग स्माइल करके बोल रहे थे तो मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ कि नहीं नहीं बराबर से ही कह रहे होंगे। ओके, अब ये एक्सपेक्टेशन की कम्युनिकेशन कुछ ऐसे होगी, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। एक सास बहू का ना एक कॉमन वॉर फ्रंट होता है, एक स्पॉट होता है जिसका नाम है घर का किचन क्योंकि हमारे हस्बैंड्स कहते हैं कि तुम मेरी माँ के जैसा खाना नहीं बनाती और हम कहते हैं कि यहाँ पर मेरी माँ जैसा खाना मैं बना नहीं पाती और जैसे ही एक घर शुरू होता है, अब म्यान में 2 तलवार आ गई है। शुरुआत कहाँ से होती है? पहले किचन की शुरुआत कैसे होती है, कोई बताना चाहेगा? चाय बनाने से नहीं होती। एक बहू जब घर में आती है, हम गृह प्रवेश और वो सब जो फॉर्मेलिटी करते हैं, फिर वो बहू किचन में कैसे शुरुआत करती है? मिठाई बनाकर करती है। उसको घर से बराबर सिखा के भेजा जाता है जो जहाँ पियरनी आबरू राखजे बराबर। और गुजरातीज में ना कंसार बनवाया जाता है। अब या तो कंसार जिसको लापसी कह सकते हैं, ये इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि शायद वो बनाना बहुत आसान है, या तो इसलिए बनाया जाता है कि यार एक ही एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, या तो बहुत अच्छा बनेगा या तो कच्चा बनेगा और 2-3 बार प्रैक्टिस करवाई जाती है घर पर कि जो जा आबरू राखजे माए कहीं सीख्યું નથી वो कैसे अब ये जो कंसार से शुरू करें तो ये जो लापसी होती है वो बहुत मेल्ट हो जाती है अपने मुंह में, बहुत प्यारी सी होती है, शुगर फ्री होती है। बहुत घरों में शुगर फ्री होती है जब गुड़ से बनाई जाती है। ओके, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मीठी सी रेसिपी है, प्यारी सी रेसिपी है। ओके, अब ये जो प्यारी सी रेसिपी है इसमें ना गुड़ डालते हैं, गुड़, शक्कर नहीं डालते। मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक बातें बताऊं, यहाँ पर बहुत सारे पुरुष भी बैठे हैं। ओके, अगर आप गूगल करेंगे ना तो शुगर इज एक्चुअली समथिंग विच इज कॉल्ड एज एम्प्टी कैलोरीज। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है प्लेजर के सिवा, वो एम्प्टी कैलोरीज गिना जाता है। अगर हम जैगरी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमको मिल जाते हैं। ये जो कंसार बनाया जाता है, जो लापसी बनाई जाती है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो राब पिलाई जाती है, वो भी लापसी राब बहुत कुछ पिलाया जाता है, सब में गुड़ पड़ता है। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। ये जो गुड़ है ना, ये एम्प्टी कैलोरीज नहीं है लेकिन मिठास लेकर आता है। अगर हम अपने कॉन्वर्सेशंस में शुगर डालने की जगह आ तो मारी दिकरी जेवी छे, वो शुगर छोड़ दीजिए, हम जैगरी डालते हैं। ये जैगरी का एक अगर रेसिपी मोड बताऊं तो जब मुझे मेथी के थेपलों में या कहीं भी जैगरी डालनी है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द रेसिपीज़ जब वो सुखड़ी बनती है ना, गोल पापड़ी वगैरह, तो उसमें भी ना मैं वो जैगरी गैस को बंद करके नीचे उतार के डालती हूँ, क्योंकि कभी भी जैगरी को अंदर गुड़ को डालना नहीं चाहिए, उसको हीट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मुझे सिखाया गया है। ओके, मेनली रेसिपीज़ में ऐसा होता है, कुछ में डाल भी लेते हैं हम। ओके,
अब ये जो जैगरी है, ये जो गुड़ है, उसको हीट से निकाल कर डाला जाता है. इसका मतलब विदाउट एनी प्रेशर्स, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी क्या लोग कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे. मैं अगर बहुत ढील दे दूंगी तो कहेंगे माथे चढ़ावी दीदी छे वहूने. मैं अगर बहुत प्रेशर डालूंगी तो कहेंगे आ बद्दी सासू आवी जोए. मैं अगर बहुत मम्मी जैसी करूंगी तो कहेंगे ये तो बधु अत्यारे शरू में लागे पछी जोजे. और मैं अगर बहुत ज़्यादा बाहर जाके कहूँगी मेरी सास मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये बोला, मुझे ऐसा सुना दिया, तो कहेंगे कि जोયું બહુ લગનમાં નાચ્યા હતા સંગીત સંધ્યામાં બંને ફેમિલીવાળા. આ બધું આવું જ હોય. तो ये हर चीज़ घूम फिर के आओ जो पे घूम जाती है. हमको वो नहीं करना है. हमने आज डिसाइड किया है, यस और नो, आपने कमिट किया है, तो हम ये जैगरी डालते हैं. इसको डालना भी है, हीट लगने भी नहीं देना है, इसको पिघलने देना है नेचुरली. क्या हम ये प्रेशर्स छोड़कर नेचुरल कॉन्वर्सेशंस नहीं ला सकते? व्हाट इज अ नेचुरल कॉन्वर्सेशन? आप लोग पहली बार स्कूल गए होंगे, पहली बार कॉलेज गए होंगे. आप में से कई लोग अभी कुछ लोगों को पहली बार मिले, यस और नो? नए लोगों को मिले ना. कुछ लोग पूछ रहे थे आपका नाम क्या है. कुछ लोग एक्सचेंज कर चुके 5-5 पॉइंट्स, फिर अलग होते हुए बोले अरे आपका नाम नहीं बताया आपने, आपका नाम क्या है. ओके अगर मैं अभी आपको 5 मिनट के बाद वापस मिलवाने भेजूं तो क्या आप उसी व्यक्ति के पास जाना चाहेंगे जिन 3 लोगों को आप मिले, यस और नो? आप उनको पहले नहीं जानते थे लेकिन अभी मिले ना, तो एक बार वो एक कंफर्ट बैठ गया आपका एक दूसरे के साथ, यस. तो न चिराग नहीं सॉरी न मामा करता काणो मामू सारो टाइप्स की. इधर कोई नहीं जानता है, उससे अच्छा कोई तो जानता है, थोड़ा तो जानता है, उधर जाते हैं. ये एक तरह की फ्रेंडशिप है, यस और नो? क्या हम इस दिल मिल के रिलेशनशिप में दोस्ती का गुड़ डाल सकते हैं? क्योंकि दोस्त तो होता है जो चिल्ला भी देता है, तेरे को अक्ल नहीं है, ऐसा दोस्त बोल सकता है. मम्मी डैडी नहीं बोल सकते, भाई बहन भी नहीं बोल सकते, दोस्त बोल सकता है. अरे यार तेरे को अवार्ड मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, वो भी दोस्त बोल सकता है. और एक बैरियर आ जाता है वरना रिलेशनशिप्स में. और दोस्त जो होते हैं ना वो एकदम घर के सदस्य भी नहीं होते. हम सब कुछ उनसे शेयर करते हैं, बट जितना हमें शेयर करना है उतना ही करते हैं. एक प्रैक्टिकलिटी होती है उस दोस्ती के रिलेशनशिप में, एक लिमिट भी होती है, एक लिमिटलेस बॉन्डिंग भी होती है. दोनों का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दोस्ती में हो सकता है और किसी रिलेशन में नहीं होता, यस और नो? ये जैगरी अगर हम डाल पाएँ, छोटा सा गुड़ डाल दें, तो ये शुगर कंबाइंड जो बनते जा रहे हैं ना ये रिलेशंस, उससे हम साइड हट सकते हैं. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के जनरेशन में, एक कुछ सालों पहले एक सत्यमेव जयते करके शो आ रहा था, आपको शायद पता होगा, आमिर खान होस्ट कर रहे थे. उसमें एक बार एक सीनियर सिटीजन नाम का एपिसोड आया था. इट वाज अ सीनियर सिटीजन स्पेशल एपिसोड. हम सब ने ये बागबान, अवतार, बहुत कुछ देखा है. हम सबको पता है कि ये भी रियल सिचुएशंस हैं. आज हम सारे अच्छे घर के लोग बैठे हैं. अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने जो बैठे हैं, अगर हम ये सोचें कि ये जो मूवीज़ हैं इनको साइड पे थोड़ा सा रख के, अगर हम ऐसा सोचें कि ये जो दोस्ती वाला गुड़ डाल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, ओपन कॉन्वर्सेशन हो सकता है. अगर एक ऑकवर्डनेस है, अगर मान लो कि आज मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ जामनगर सिटी में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ. कई लोग हमसे पूछते हैं अच्छा તમારા સાસુ સસરા સાથે નથી रहता? जब मैं कहती हूँ नहीं तो वो अपना ही जजमेंट बना के निकल लेते हैं. कई लोग वहाँ पर उनको पूछते हैं
કેમ તમે તમારી વહુ સાથે નથી રહેતા? वो ना कहते हैं तो वो भी अपना जजमेंट बना के निकल लेते हैं, दोनों जजमेंट रॉन्ग है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम साथ साथ हैं, कैन इट नॉट बी इमोशनली साथ साथ हैं? क्योंकि आज के ज़माने में हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबको अपनी अपनी स्पेस एक चाहिए होती है. आज अगर एट द एज ऑफ 70, 72, 75 इफ एनी मदर इन लॉ ऑन अर्थ फील्स आज यार मेरे को भिंडी की सब्जी नहीं खानी है, मारे આજે તુરિયાનું શાક ખાવું છે, she feels awkward to tell her daughter in law कि આજે મને તુરિયા ખાવા છે. If a daughter in law feels कि यार आज मेरे को पिज़्ज़ा खाना है या आज मेरी मम्मी जैसी दाल बनाती है ना वैसी मेरे को खानी है, ये लोग उसमें जीरा डालते हैं, मेरी मम्मी राई डाल के बनाती थी, मुझे वैसी वाली खानी है. बट आई फील ऑकवर्ड टू से कि यार मम्मी मेरे को आज मेरे घर वाली दाल खानी है. क्योंकि ये पूरा कंसार के बाद जो शुरू होता है ना, वो हमारा घर में तो आवू ज बने, हमारा घर में तो रस्सा वालू ज बने, वहाँ पे ही ख़त्म कर देते हम पूरे कंसार की मिठास. और फिर वो बेटी भी आजकल कहती है कि यार पण हमारा घर में पण आવું बने, कोक बार ट्राई करो ने. फिर वो तू मैं शुरू हो जाती है अननेसेसरीली, उसको साइड पे रखते हैं. और वो सत्यमेव जयते का एपिसोड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे भी बात करता था, एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल. इसीलिए आज शायद अच्छे पेड ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं जहाँ पर वृद्धाश्रम में मम्मी पापा ने मूकी આવ્યા का कॉन्सेप्ट नहीं है. वो गौरव से खुद कहते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव इन माई वे, सो आई विल गो एंड स्टे देर, क्योंकि वो मेरा एज ग्रुप है. और ये इसलिए होता है, इसमें कुछ भी आज के ज़माने में गलत नहीं है. आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी के नज़रिए से ये सोचती हूँ और अपना फ्यूचर जानते हुए ये कह रही हूँ कि जैसे बच्चों को अपना एज ग्रुप चाहिए ना, वो ढूंढते हैं मेरे एज का कोई है, अरे यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, आई एम ऑल्सो इन 4th स्टैंडर्ड. वो एक तरह का दिलमिल हो जाता है. इफ दे स्टार्ट स्टेइंग विद देयर एज ग्रुप ऑफ पीपल, इफ वी आर ऑल लिविंग टुगेदर, स्टिल उनको शाम को नीचे जाकर बैठना है वो आंटीज के साथ, क्योंकि वो उनका स्पेस है. अब वो हम साथ रहें या नहीं रहें उसका कोई मायने ही नहीं है. मायने ये है कि मुझको मेरे जैसे लोग मिलते हैं क्या जिनसे मैं बात कर सकूं, क्योंकि रोज़ कोई ऐसे हाथ ड्रॉ करके अनजान लोगों से नहीं बात करवा देता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो क्या ये दिल मिल ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी अपनी अपनी भी एक स्पेस है और हमारी साथ में भी एक स्पेस है, जहाँ हम साथ में रहते हैं तो हम एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करके रह लेते हैं, हम अलग अलग रहते हैं तो अपने अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन हम रोज़ बात भी करते हैं, हम ओकेजनली भी बात करते हैं. ओके, जैसे कि अगर मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं हर रोज़ फ़ोन पे बात करूं तो शायद मेरे पास कुछ होगा नहीं बात करने के लिए. ओके, लेकिन मैं हर 15 दिन या 1 महीने में अगर बात करूं तो दिल मिल हो सकता है. दैट्स इनफ. हाँ, जब ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे के लिए होने चाहिए. ओके, जैसे अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हमें एक कॉल आता है, हम आ जाएं क्या, एंड वी अप्रिशिएट दैट वी हैव सम ब्लेसिंग लाइक दिस, जो कोई पूछता है कि हम आ जाएं क्या. सेम वेज अगर वहाँ कुछ है तो हम पूछते हैं कि हम आ जाएं क्या, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स. और उसके लिए कॉन्वर्सेशन चाहिए, लेकिन एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चाहिए. अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है, जैसे किसी ने कहा कि वो लेट गो होना चाहिए और किसी ने कहा कि मदर इन लॉ के साइड से लेट गो होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा होगा हाँ સાસુએ લેટ ગો કરવાનો શું જમાનો આવી ગયો છે નહીં. અરે લીવ અસાઇડ ધેટ જમાના ના યાર. Sorry? Time has not changed. It was always like this. There is a conversation today by which we are talking about this openly, and I'm so thankful to AMA that we are talking about this kind of a topic. वरना ये टॉपिक वो भी YouTube पे जा रहा है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे.
and we should be proud that now time has changed that we are talking on this. क्यों घुट घुट के क्यों जीना है यार? बात करने से बात बनती है. And why does a female go to some other female and say, मेरे घर में ना आज ऐसा बोला? अरे हम सामने बात नहीं कर सकते क्या? वी आर ह्यूमन बीइंग्स. और ये आर्ग्यूमेंट नहीं है. हर चीज़ की एक टोनालिटी होती है ना बात करने की. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने नहीं समझाए તમે રહેવા દો બેઠા રહ્યો. તું તો રહેવા દે કાલની આવેલી છોકરી, મને નહીં શીખવાડ. Those tonalities are wrong. Don't go to that. But we are in the same family, right? तो क्या हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि आज मुझे ये खाने का मन है, आज मैं आपको अपने घर की एक स्पेशल रेसिपी खिलाऊं? मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है. आज आप मुझे सिखाएंगे कि आप कैसे बनाते हैं. ओके, इनिशियल डेज आई यूज्ड टू टेल देम कि प्लीज़ मुझको सिखा दो बाबा, बिकॉज टेस्ट मैच नहीं करते. और वो प्यार से सिखाते थे और मैं सीख गई. और आजकल मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ यार टेस्ट मैच नहीं करते. और वो भी मुझे सुनाती है 25 साल इधर रही और 12.5 साल में टेस्ट मैच नहीं करते. अब क्या करूँ, दिल में हो गया है. अब ये गुड़ शक्कर साइड करें और थोड़ा सा केसर लेकर आते हैं बाद में. केसर होता है ना थोड़ा सा, वो खीर को ना बड़ा कलरफुल बना देता है. ये केसर का हम क्या करें? इस केसर के लिए ना मैं इन पुरुषों को ऐड करती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में ऑफिशियली. ये जो केसर है इसकी मिठास ही अलग है, इसका स्वाद अलग है, इसकी फ्रेग्रेंस अलग है. और 1 ग्राम केसर भी बड़ा महंगा आता है. तो ये कॉन्वर्सेशन में लाने में ज़रा महंगा पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से संभाल के. इस विमेंस डे पे जो ये इतना सारा AMMA सेशंस हो रहे हैं, और जगह पे हो रहा है विमेंस डे विमेंस डे विमेंस डे. नारी को विमेंस डे की ज़रूरत ही नहीं है, एवरी डे इज़ विमेंस डे. मार्च आता है ना तो टैक्स और विमेंस डे दोनों हिट लिस्ट पे होते हैं. ये 2 ही चीज़ हमको समझ में आती है मार्च में. और एक होली होती है कभी कभी बीच में 1 आध दिन. अब ये जो मार्च महीने में विमेंस डे कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल विमेंस डे हर साल एक थीम लेकर आता है, शायद आपने सुना भी होगा. इस साल विमेंस डे की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी, यानी एक इक्विटी लेकर आते हैं. हम सब ने सोचा कि एम्ब्रेस इक्विटी मतलब स्त्री और पुरुष की इक्विटी. मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ पुरुषों के साथ, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. और उसके लिए कोई होम मेकर या वर्किंग या बिजनेस, उन सब की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है. आप घर की लक्ष्मी है, वो इटसेल्फ काफ़ी है, बाकी कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं उसके लिए. तो एम्ब्रेस इक्विटी वो वाला हो गया है. ये विमेंस डे की जो थीम थी ना, अगर आज नज़रिया बदलने आए ही हो, इट इज़ एम्ब्रेस इक्विटी बिटवीन 2 विमेन. मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए तो एम्ब्रेस इक्विटी का तो भाजीपाला कर दिया आपने. मैं आज के ज़माने की हूँ, मुझको ज़्यादा टेक सेवी नॉलेज है, फिर एम्ब्रेस इक्विटी को छोड़ दिया आपने. तो विमेंस डे मना के आपने क्या कर लिया यार? लेट अस एम्ब्रेस इक्विटी टुगेदर एंड अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप दोस्ती बनाकर ब्यूटीफुल हो सकता है. और ये दोस्ती वाली एम्ब्रेस इक्विटी ना करके, केसर ऐड ना करके, हम आज के ज़माने के सैंडविच पे चले जाते हैं. ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप शक्कर, गुड़, केसर, सैंडविच ये सब जब देखो तो आपको सेशन याद आना चाहिए. क्या है कि 1 दिन का काम नहीं है. ओके, तो ये सैंडविच कैसे होती है? यहाँ पर बहुत पुरुष बैठे, पता नहीं बताएंगे कि नहीं ऑनेस्टली. આજે તો આવવા દો ઘરે એમને. તમારા મમ્મી આજે ખબર છે મને શું કીધું? यहाँ से सैंडविच शुरू होती है, लेकिन सामने वाली पार्टी भी इक्वली तैयार होती है.
આવવા દો આજે છોકરાને, તને ખબર છે આજે તારી વહુ શું બોલી, वो फिर तारी वहू पे चला जाता है मैटर, पूरा का पूरा टोपला उन पे चला जाता है, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी वाइफ हम तो कोई है ही नहीं, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। और ये जो सैंडविच का ये टर्म है ना, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मम्मी, वहाँ से इतना सारा कड़वाहट शुरू होता है। बहुत सारे मेल्स कहते हैं यार मने आमा वच्चे पाड़वानु बंद कर, एंड दोज मेल्स आर एब्सोल्युटली राइट। उनको क्यों हम बीच में घसीट रहे हैं यार। मुझे मेरे दोस्त से जब प्रॉब्लम होती है ना, तो सच्ची दोस्ती वो होती है जहाँ मैं फ़ोन करके बोलती हूँ ते आजे जे ओलू कीधु ने आपणे बधा बैठा था साथे मने जरा गम्યું नहीं है। डू वी हैव दैट ओपननेस इन अवर फ्रेंडशिप्स टू से, उधर के उधर कभी कभी तो लड़ाई हो जाती है। ऐसे भी हमारे दोस्त होते हैं कि वहीं के वहीं हम बोल देते हैं आ तुझे बोल्યું नहीं बिल्कुल व्याजबी નથી। दैट ओपननेस वी हैव विथ ईच अदर इन अ फ्रेंडशिप, that tonality can be different, but can we not have that openness? क्योंकि सास भी कभी बहू थी और क्योंकि बहू भी कभी सास होने ही वाली है, वो साइकिल तो हम नहीं छोड़ सकते कभी भी। तो क्या हम आराम से प्यार से झगड़ा किए बिना, रोए बिना, वो शस्त्र यूज़ किए बिना आंसुओं का, यार ज़माना टाइम हैज़ एक्चुअली चेंज, लेट्स चेंज दैट टाइम, कैन वी ओवरकम दीज चैलेंजेस? और ये इनिशियल जब शादियाँ होती है ना, तो ये बहुत चैलेंजेस आती है हर शादी में। कैन वी ओवरकम देम, कम आउट ऑफ देम एंड स्टार्ट सेइंग प्यार से कि वो आपने जो बोला ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप भी तो किसी के बेटी ही हो ना, तो कोई ऐसे आपके मम्मी के बारे में बोलता तो अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा आज, सॉरी आप बुरा मत मानना लेकिन अच्छा नहीं लगा। या फिर अगर एक मदर इन लॉ प्यार से कह दे यू नो देखो हमारे घर में बहुत ओपननेस है, लेकिन वो जो हम रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं ना फैमिली की शादियों में, वो ज़रा ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमारे घर में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि बहू है ना तो पैर छूनी चाहिए। सो इफ़ दैट एक्सपेक्टेशन इज टोल्ड टू मी, आई नीड टू हैप्पीली एक्सेप्ट इट। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं जो पगे लागजो जरा सारू लागे, वो मेरा सारू लागे से ज़्यादा अपना वो आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि मैंने अपनी बहू को अच्छे से रखा है, विच इज़ ऑल राइट। ऑल ऑफ अस वॉन्ट एप्रिसिएशन यार। मुझे किसी ने बोला आई विल फेलिसिटेट यू एज अ स्पीकर, आई एम ग्लैड। मैं तो फोटो पे पोज भी दे रही थी। किसको एप्रिसिएशन नहीं अच्छे लगते ज़िंदगी में? अगर ये गुड़, शक्कर, शुगर फ्री सैंडविच छोड़ के केसर ये सब ऐड करें तो बहुत कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। आज मैं आपसे एक और एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ। यहाँ पर कितने लोग हैं जो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ साथ में आए हैं? ऐसा कोई है? अरे वाह, वेरी नाइस, वी हैव 3 sets of people, थैंक यू। एंड द अदर्स हैव कम इंडिविजुअली राइट? या कुछ हस्बैंड वाइफ आए इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ ओके, वेरी नाइस, ऑल राइट। ये दिल मिल वॉज डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ, ठीक है, लेकिन ये माइंडसेट चेंज है, इसीलिए देखो आप कॉम्बिनेशंस देखो कितने कम है। ऐसे कैसे मम्मी को बोल सकते चलो ऐसा सेशन में, वो सोचेंगी मुझे सिखाने ले जा रही है। ऐसे कैसे डॉटर इन लॉ को ले जा सकते हो, बोलेगी अच्छा मेरे से प्रॉब्लम है तो वहाँ बोलोगे, उनके मुँह से बुलवाओगे। छोड़ो यार ये सब, 1 घंटे से हमने पर्सपेक्टिव तो चेंज कर ही दिया है। आज एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। आप सब खड़े हो पाएंगे तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अपनी जगह पे रहिए। ओके और मुझे क्वेश्चन पूछना है कि 1 घंटा मुझे सुनने के बाद आई होप कि आपकी जो अंदर की बहुत सारी ऑकवर्डनेस है वो चली गई होगी। यस और नो? श्योर? तो ही हम ये एक्टिविटी कर पाएंगे। आपको कोई डांस वांस नहीं करवाने वाली हूँ मैं, पर आप ये एक्टिविटी करोगे कि नहीं करोगे पहले कमिटमेंट दो। पहले बताऊँ या पहले कमिटमेंट दोगे? अच्छा, इससे दिल मिल प्रैक्टिकली हो सकता है, ऐसी एक्टिविटी आप करोगे?
पक्का आया नज़र जोर से बोलो, कैमरा में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि वो जो देख रहे हैं ना उनको ऑनलाइन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर आप जोर से हाँ बोलोगे तो वो अपने घर में करेंगे। आप करोगे ये एक्टिविटी, यस और नो? हाँ, ऐसी वाली आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत करना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है, आप एक पार्टनर ढूंढ लीजिए, 2-2 की पेयर बना लीजिए। इट कैन बी एनीबडी, ओके। 2-2 की पेयर, ज़रा आमने सामने खड़े हो जाइए, कोई भी चलेगा, जो बाजू में है उसको पेयर बना लीजिए, शर्माइए मत, ओके। यू नीड अ पेयर। अंकल, अंकल आप आ जाएंगे उनको कंपनी देने प्लीज़? आओ ने जरा सारू पड़से। ओके, डू वी हैव पेयर्स, यस और नो? एनीबडी इज नॉट फाइंडिंग अ पेयर हियर? वो साइड में बैक बेंचर बन के छुपना नहीं है मुझे, मैं वहाँ आऊँगी मैं चेक करने। अब 2-2 की पेयर बनाकर एक दूसरे को ज़रा फेस कीजिए तो हम देख पाएँ आप पेयर्स बन गई है कि नहीं। कैन यू फेस ईच अदर, स्माइल एट ईच अदर? यार हम ह्यूमन बीइंग्स है। कैन यू स्माइल एट ईच अदर? आर वी स्माइलिंग एट ईच अदर? कैन यू पेयर अप विथ हिम प्लीज? आप इनकी पेयर बन जाएंगे। डू वी हैव पेयर्स? एवरीबडी हैज पेयर्स, ओके। अपने पार्टनर को ज़रा हाई फाई दीजिए, ओके। अगर नाम नहीं पता तो एक दूसरे को बता दीजिए, कुछ लोग अगर ऑड पेयर्स हैं, और पता है तो भी आज पूछ ही लो। सुनीता, तेरा नाम क्या है? सुनीता, आज पूछ ही डालो। हो गया, नाम एक्सचेंज हो गए एक दूसरे के, ओके। एंड डिड यू एक्सचेंज अ हाई फाइव विथ ईच अदर? यस, ओके। नाउ क्लोज योर आईज, ओके। नहीं, आपके कुछ भी बिलोंगिंग्स गायब नहीं हो जाएंगे इधर से, फिक्र मत करो। मैं भाग नहीं जाऊंगी मोबाइल लेके। क्लोज योर आइज जस्ट फॉर अ मोमेंट। एक्टिविटी आपको खुली आंखों से ही करनी है। जस्ट क्लोज योर आइज, ओके। आप में से कुछ यहाँ पर सास हैं, कुछ बहुएं हैं, कुछ ये दोनों रोल्स में नहीं है, ओके। लीव दैट असाइड। जैसे आपने शुरुआत में फर्स्ट एक्टिविटी में अज्यूम किया कि अगर मैं सास हूँ या अगर मैं बहू हूँ या दुनिया की कोई भी सास हो, दुनिया की कोई भी बहू हो, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो अब एंड करते करते भी लेट अस गो विद द सेम अजम्पशन कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा माइंडसेट है। आई डोंट केयर मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं कौन से एज ग्रुप में हूँ, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। इज दैट डन इन योर माइंड? हैव यू पुट दैट इन योर माइंड? येस और नो? ऑल राइट। अब आप आंखें खोल सकते हैं, अपने पार्टनर को फिर से देखिए, स्माइल कीजिए, ओके। हाँ, हाथ भी मिला रहे हैं, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब ज़रा बॉलीवुड की तरफ चलते हैं। नहीं, डांस वांस नहीं करना है, ओके। आप सबको अगर मैं पूछूं तो दोस्ती वाले गाने याद होंगे? मैं दोस्ती वर्ड दूं तो आपको गाने आते हैं ना, उसमें से ये गाना वो गाना, ओके। कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है यहाँ? ये दोस्त दोस्त नारा वाला नहीं। यहाँ थैंक यू आंटी बताने के लिए। हाय ला, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। ये दोस्ती हम तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, ओके। हाँ, तोड़ेंगे वाला मत गाना प्लीज। और दोस्त दोस्त नारा इज बैंड फ्रॉम दिस रूम। हाँ, थैंक यू, ओके। देर इज़ यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, देर इज़ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, देर आर सो मैनी, ओके। अगर आपको चाहिए तो गूगल कीजिए, मैं अलाउ करती हूँ, ओके। मुझसे दोस्ती करोगे, बहुत सारे गाने भी आ रहे हैं इधर। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बाजू में पूछ लो, आप कौन सा गा रहे हो वो पूछ लो, ओके। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल होल्ड ईच अदर्स हैंड्स। अपने पार्टनर का हाथ पकड़िए, चाहे जो भी हो, ठीक है। आज खुल्लम खुल्ला दिल मिल करेंगे हम दोनों, ओके। अब हाथ पकड़े रहना है, हाथ छोड़ना नहीं। ये फेविकॉल का जोड़ होना चाहिए, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। लुक एट योर पार्टनर, डिसाइड अ सॉन्ग अमंगस्ट योर सेल्फ, ओके, एंड सिंग इट। और भले ही कोरस वोरस वो केओस होने दो, उसका कोई टेंशन मत लो, बाजू वाला क्या गा रहा है, क्या सुन रहा है। कोई यहाँ पर कोई संगीत विशारद मेरे ख्याल से नहीं है ना? हाँ, तो टेंशन मत लो, मैं भी नहीं हूँ, ओके। चलिए 1 2 3 गो।
किसी को यहाँ गाना चेंज करना है? नहीं, वही गाना मतलब चेंज करना है तो सब वही गाएंगे फिर चलेगा. एनी अदर सॉन्ग? अरे ऐसा कैसा यार? नहीं, आप चालू तो करो, वो सब बोलेंगे, वो सब गाने लगेंगे. दोस्ती बड़ी ही हसीन है. पार्टनर को देखो ना, मुझे मत देखो. फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार. ओके, और कुछ? ओके, अब बैठ जाइए ज़रा, 2 मिनट और दीजिए मुझे. When you just did this activity, आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आप मुझे गालियाँ दे रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये अपने आप को खुद को क्या समझती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट? Did you think about the hell of problems that we face every day in our life? You just went and sang, okay? You just did this, right? और आपको वो दोस्ती वाली फील आई कि नहीं अपने पार्टनर के साथ? चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी थे तो एक बार वापस दोस्ती वाली फील आई कि नहीं? येस और नो? दैट इज इम्पॉर्टेंट. कुछ लोग यहाँ अनजान होंगे तो नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेंगे, ज़रा कीप इन टच. बाद में पता नहीं लेकिन करेंगे, ओके? ये जो आपने अभी अभी किया, मैं अब आपको ऐसा कुछ फिलोसॉफिकल नहीं कह रही हूँ कि आज ही घर जाके अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाइए, या अपनी बहू का हाथ पकड़िए, अरे आज मैं दिल मिल सुन के आई हूँ, चल यारो दोस्ती. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि रिश्ते एक दिन में अचानक से टर्न अराउंड नहीं होते. वो रिश्ते हैं ना, उनको टाइम लगता है. बट अगर हम हर बार, ये आपको गाना इसलिए गवाया बिकॉज दिस स्टेज इन योर हेड, बाकी जो मैंने बोला वो तो बहुत कुछ वर्ड्स थे, ओके? साइकोलॉजी के हिसाब से हम हर एक ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग माई 10-year-old चाइल्ड हियर, हम हर किसी के दिमाग में हर रोज़ नोट डाउन, हर रोज़ दिन के 60,000 थॉट्स आते हैं. 60,000 थॉट्स. अगर मैं आपको एक मूवी की स्टोरी कहूँ तो आप मुझे बराबर बता सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर वॉचिंग इट, आपका एक थॉट आपके दूसरे थॉट से कनेक्ट करता है, और जब वो पूरा कनेक्शन गट्ठा बन जाता है ना, तो वो थॉट बराबर रहता है. मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 4 दिन पहले एग्जैक्टली कौन सी सब्जी खाई थी तो आपको याद नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर किसी घर में ऐसा है कि हमारे ત્યાં बुधवारे मगનું જ શાક बने, तो आप फिगर आउट कर लोगे कि हाँ हमारे यहाँ बुधवार था ना, हाँ तो मूंग खाया था. तो वो कनेक्टेड थॉट था, इसके लिए वो गट्ठा बना रहा. नाउ व्हेन वी वॉच नेगेटिविटी ऑल अराउंड अस, જોજે હા સાસુથી સંભાળજે, જોજો હા વહુ જરા મુંબઈની છોકરી છે. અચ્છા, નોકરી કરે છે તમારી વહુ, પછી टिफिन कौन बनावे? ये सब जब हम सुनते हैं ना अपने आसपास, तो ये गड्ढे बन जाते हैं थॉट्स के. इसलिए हम उसको सच मानने लगते हैं और फिर सोचते हैं यार इधर ऐसा ही है. वो वेस्टर्न कल्चर में चलता है, इधर अपने यहाँ पे बहुत मुश्किल है. ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, वो गड्ढा हमने इधर खोद के बनाया है. जैसे ही आपको कोई एक चीज़ बोले ना कि यार ये दिल मिल पे कभी आप कुछ सुनो ना आगे चल के, तो प्लीज़ इमीडिएटली आपके दिमाग में एक सेट कर दो सिस्टम, अलार्म, कि वो ये दोस्ती बजना चाहिए आपके दिमाग में. ताकि आप कोई सीरियल भी देख रहे हो ना, तो आपको ऐसे डैश 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 3 बार दिखाई देना, तो भी आपके दिमाग में यारो ऐसे बजना चाहिए. Because we decide what we react और we decide what we respond. ये दिल मिल खाली लेक्चर में आने से नहीं हो सकता. लेक्चर से जाके तुरंत एक अचानक ड्रास्टिक चेंज करने से तो नहीं हो सकता. और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, you may disagree with some of the things that I said, which is your personal opinion and I respect it.
मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर किस हम ह्यूमन्स हैं यार, हमारी एक ओपिनियन हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ गलत लगा हो मैंने कहा हो, तो आई एम वेरी सॉरी, ओके, दिल से सॉरी। हो सकता है कुछ आपको बराबर लगा हो, ओके, यू डिसाइड हाउ यू विल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू दिस। मुझे बस इतना कहना है कि अगर ये दिल मिल करना है तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना कर रखा है एम्ब्रेस इक्विटी ऑफ अ वुमन एंड मैन, उसको साइड करते। ये अपनी आइडेंटिटी, मैं घर की लक्ष्मी हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ भी घर की लक्ष्मी ही हुई और मेरी बहू भी घर की लक्ष्मी हुई। और जब लक्ष्मी कहते हैं ना तो सौभाग्य आता है, मतलब 100 गुना भाग्य आता है। और जब सास बहू साथ में आते हैं ना तो 200 गुना भाग्य आता है। अब वो 200 गुना भाग्य को हम भागला कर देंगे ना मेंटली, तो वो सौभाग्य घर से चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि घर में बरकत नहीं आती। हम दोनों घर की लक्ष्मी हैं। कैन वी नॉट ब्रिंग 100 + 100 भाग्य टू आवर फैमिलीज? और उसके लिए जैसे मैंने प्रैक्टिकली कहा, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बेटी है, उसको हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, बिकॉज हम मास्क पहन के घूमते हैं। और वो मास्क है ना, हम राह देख रहे थे कभी ये पैंडेमिक जाए, वो हम जिंदगी भर का पैंडेमिक बना लेते हैं। उससे अच्छा कैन वी नॉट ब्रिंग दैट जैगरी, दैट केसर, नो सैंडविचेस टू द men sitting here? Can we bring these elements of taste in the recipe of this relationship with a very, very small ingredient called as दोस्ती? फिर दोस्त ना रहा नहीं होना चाहिए, ओके? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू डिस्क्लेमर से किया था तो एंड भी डिस्क्लेमर से ही कर देती हूँ। तो वो दोस्ती वाले गाने मतलब अच्छे वाले गाने, एक्सपेक्टेशन सेटिंग मतलब अच्छी वाली सेटिंग। और आज का लास्ट चीज़ जो मुझे आपसे कहना है कि आपने ये पेपर बनाया, 5 उंगलियां बनाई, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो एक्टिविटी के लिए बनाई है। मैं इसका लॉजिक बता देती हूँ आपको। 5 क्वालिटी सास की और 5 बहुओं की हमने लिखी हैं। कुछ लोग हम मानते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो पेपर पे लिखवा है, इसके लिए लिखी हैं। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि घर की लक्ष्मी को पूजा जाता है। धनतेरस के दिन तो पूजा ही जाता है, बट वो मूर्ति को पूजा जाता है। एक्चुअल घर की लक्ष्मी की अगर जेन्युइनली प्रैक्टिकली रोज़ के दिन के चर्या में अगर हम पूजा करना चाहते हैं तो ये जो 2 हाथ है ना, इनको मिला देंगे ना तो ये नमस्ते करके हाथ जोड़ना हो जाएगा। एंड दिस इज इन्फिनिटी। रादर देन तेरा क्वालिटी ये और तेरा क्वालिटी ये, कैन वी मर्ज देम टुगेदर? कैन वी होल्ड हैंड्स, जॉइन हैंड्स टुगेदर, बिकम द सौभाग्य लक्ष्मीज ऑफ द फैमिली? और जेन्युइनली हाथ जुड़ने से दिल पक्का जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड प्लीज़ अपने घर की लक्ष्मियों को ये वाला दिल मिल ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। Wow. Hello. Yeah, just a second. Wonderful session, eh? For me also an eye opener. So I think આજે when તમે લોકો અહીંયાથી જશો તો આઈ એમ વેરી મચ શ્યોર, જેમ પ્રિયંકાએ કીધું કે આજના આજ તો ચેન્જ નહીં થાય, પણ કદાચ એ ચેન્જ આજે સ્ટાર્ટ કરીશું, કદાચ, ઓર મે બી નેક્સ્ટ ડે, કાલે. બટ વી મેક શ્યોર કે અહીંયાથી જઈએ છીએ તો લેટ્સ બી દેટ ચેન્જ. ફોર દેટ આઈ થિંક પ્રિયંકા needs a round of applause, so please everybody. Thank you so much. અને અમે ફીડબેક ફોર્મ્સ મૂક્યા છે, સો કાઇન્ડલી સાઇન દેટ અને પુટ ઇટ ઓન ધ ટેબલ. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ કદાચ પ્રિયંકાની બહુ જ ઈચ્છા હતી ફોર ધીસ સેમ.
આઈ વુડ લાઈક ટુ હેવ અ કેમેરા ઓવર હિયર. બધા છે ને પ્લીઝ, એક તો એમને લાસ્ટ નમસ્તે કીધું, સો લેટ્સ જસ્ટ ડૂ ધીસ all together. This was her wish. So let me take a picture of it also. Everybody, in case તમે કરી શકો તો just hold your hands like this, making us see. Wow, wow. This is the heart that we made. Yes.